Welcome to the second chapter of 10th Maharashtra State Board Political Science. The second chapter is electoral process. In this chapter, we will study how elections are carried out in India, what are the different functions of election commission, and how elections are carried out in India. So let us begin with this chapter. See, elections have played a major role in working of India's democracy. Elections and representation are two very important processes of democracy. See, democracy means rule of the people or rule by the people. सो जिस कंट्री में लोग रूल करते हैं उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, लेकिन लोग सब एक साथ मिलकर रूल नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, देन इंडिया इज हैविंग मोर देन 125 करोड़ पीपल. सो 125 करोड़ पीपल मिलके अपने लिए सब डिसीजन नहीं ले सकते. सो वी आर सेंडिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो रिप्रेजेंटेटिव्स पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये पॉलिटिकल पार्टीज या रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके लिए इलेक्शन होता है, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं. चूज कैसे करते हैं? इलेक्शन से. सो इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी. We know that people's representatives are selected through elections. Elections help to bring change in power through peaceful means. So while by elections we are changing our representatives, and this is via peaceful means. Different political parties get an opportunity to rule. So because of elections means we are giving choice to the political parties. Political parties को choice मिलता है. If suppose one political party is not doing good thing, not doing work properly, then we can choose different political parties. इसमें political parties को choice मिल रहा है. They are getting the choice to come in power. The policies of government and life of the society also changes. So if the party is changing, आज अगर बीजेपी का रूल है, कल जाके अगर कांग्रेस का रूल आएगा तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाएगा. जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन या स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे अलग अलग पॉलिसीज बनाया. अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट आएगा तो ये सेम पॉलिसीज यूज नहीं करेंगे, कोई और पॉलिसीज अप्लाई कर देंगे कंट्री में. सो एज गवर्नमेंट इज चेंजिंग, पॉलिसीज आर आल्सो चेंजिंग. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्शंस. We expect that the representatives can we elect should be efficient, honest and trustworthy, and that should respect the processes and should also be free. So we expect that the representatives that we have chosen, that should be honest, that should be trustworthy, or that should be efficient, he should work properly, or he or she should work properly, she should be honest, she should not be corrupt. This is our expectation from the representatives. The electoral process should also be free, fair and reliable. So elections should be free. There should be freedom given to the people to choose the representatives. लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए कि हम कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं. हमें जो कैंडिडेट पसंद है उसे हम वोट दे सकते हैं. और इलेक्शंस फेयर होना चाहिए. इलेक्शंस में कुछ करप्शन, इलेक्शंस में कुछ मैल प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए. जो जो लोगों के पास पैसा है उनका जीतने का चांस ज्यादा नहीं होना चाहिए. एवरीबडी शुड गेट इक्वल चांस. दैट इज फेयर इलेक्शंस. So election should be free and fair, and the election should be reliable. To ensure that Constitution of India has made provisions for an independent election commission to administer the election process in India. See, अगर इंडिया में जो रूलिंग पार्टी है, अगर बीजेपी रूल कर रहा है, अगर रूलिंग पार्टी ने ही इलेक्शन कंडक्ट किया तो रूलिंग पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने का कोशिश करेगा. तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करता है इंडिया में, और ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है. दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया. So they are looking about they are working to conduct elections. So इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के इलेक्शन होते हैं, म्यूनसिपालिटीज के इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन है. सो वी आर हैविंग टू इलेक्शन कमीशंस. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र के लिए जो महाराष्ट्र का पंचायत का इलेक्शंस होता है या म्यूनसिपालिटीज का अलग अलग इलेक्शंस होता है. सो बिकॉज फॉर दैट वी आर हैविंग स्टेट इलेक्शन कमीशन. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, तो फॉर लोकसभा इलेक्शंस और फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और फॉर विधानसभा इलेक्शंस वी आर हैविंग सेपरेट इलेक्शन कमीशन, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. So there are two different elections commission. So it is important for conducting elections in our country. The entire process of elections, from declaring the date of elections to the declaration of result, is carried out under the direction and control of election commission. So election commission decide करता है कि elections कभी conduct करना है, और उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट करने के बाद वोटिंग कभी होना है, या उसके बाद वोट काउंट कब करना है. दैट ऑल इज
all is decided by Election Commission of India or Election Commission. The election process is an inseparable component of comprehensive democratic process. So democracy होगा मतलब क्या होगा, लोगों को चॉइस मिलेगा, लोग इलेक्शन से लोग चूज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को. अगर एक रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज किया और वो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम नहीं कर रहा है, देन वी आर हैविंग द पावर टू चेंज दैट रिप्रेजेंटेटिव. और ये कैसे पावर मिलता है? वाया इलेक्शंस. सो इलेक्शंस आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी से हम सेपरेट नहीं कर सकते. In this chapter, we will understand the structure, functions, and role of Election Commission. We will see who are the officers in Election Commission, how Election Commission is working, what are the functions of Election Commission, and role of the Election Commission. We will discuss the reforms required to make made in electoral process. We will also see what are the problems that elections are facing and what reforms should be done, what changes we should do to organize free and fair elections. So let us begin with the Election Commission first. See, in India, Election Commission is central to the process of elections. So Election Commission is the main organization that is conducting all the elections. Article 324 of Indian Constitution has established the autonomous body which consists of one chief election commissioner and 2 other commissioners. So अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे लॉज है. सो अकॉर्डिंग टू द 324 आर्टिकल, उस आर्टिकल ने बताया कि हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा या इलेक्शन कमीशन होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल इट इज कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज ए इलेक्शन कमीशन. सो इलेक्शन कमीशन हमें कंपल्सरीली बनाना पड़ता है. सो इलेक्शन कमीशन का जो मेन ऑफिसर होता है, सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है, ही इज कॉल्ड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. सो इन टोटल देयर आर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स. टॉप पोजीशन पे होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज सुकुमार सेन. सुकुमार सेन वाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1921. So after independence, when first election was conducted, Sukumar Sen was the chief election commissioner. सुकुमार सेन ICS ऑफिसर थे. जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जैसे अपने यहाँ अभी IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर इज टॉप मोस्ट पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर होते हैं. जब भी ब्रिटिशर्स रूल करते थे तभी ICS ऑफिसर्स थे. So he was ICS officer. In 1921, Sen was selected for Indian Civil Service or ICS. Under the British rule, he was given the charge of Election Commission after the Election Commission was established in 1950. So Constitution बनने के बाद जब भी Article 324 ने Election Commission बनाया, so he was made the head of Election Commission or Chief Election Commissioner. The Election Commission was established in 1950. Mr. Sen efficiently handled the responsibility of Election Commission in extremely adverse conditions. जब ये हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ तो हमें कुछ पता नहीं था कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना है, क्या प्रॉब्लम्स फेस हो गए. हमारा ज़्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट था, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स को टैकल किया सुकुमार सेन ने. एंड बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स इलेक्शंस वेयर पीसफुली कैरिड आउट इन इंडिया एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर. सी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करता है प्रेसिडेंट. बट प्रेसिडेंट इज नॉट हैविंग द पावर टू रिमूव हिम. प्रेसिडेंट सिर्फ उसे अपॉइंट करता है, रिमूव नहीं कर सकता है, काम से निकाल नहीं सकता है. रिमूव करने का राइट होता है या पावर होता है लेजिस्लेचर के पास, पार्लियामेंट के पास. प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है. अगर प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट किया या अपॉइंट किया, उसके बाद प्रेसिडेंट ही अगर उसे रिमूव कर रहा है, तो चांसेस है कि प्रेसिडेंट अपना पावर यूज करके इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाल सकता है और अपने आप को जिता सकता है, अपने आप को नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होगा तो जिताने का कोशिश कर सकता है. सो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव गिवन इंडिपेंडेंस टू इलेक्शन कमीशन. सो प्रेसिडेंट कैन ओनली अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर, ही कैन नॉट रिमूव हिम. ही कैन बी रिमूव्ड बाय लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर cannot be removed from its office or from his post easily on an account of any political reason. See, अगर गवर्नमेंट को इलेक्शन कमिश्नर पसंद नहीं आया तो गवर्नमेंट उसे निकाल नहीं सकता है. देयर शुड बी सॉलिड रीजन. और गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये लोग उनको निकाल नहीं सकते. ही इज ओनली रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर. सो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ऑल्सो. This is necessary so that to preserve independence of election commission. Independence मिलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन फ्रीली काम कर सकता है.
इसलिए हमने इतना इतना स्ट्रांग बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर को हम इजीली निकाल नहीं सकते. This is necessary to so that preserve the independence of election commission. There is a separate provision made for expenses of election commissioner. Election commission. इलेक्शन कमीशन जब भी वोटिंग करता है या इलेक्शंस कंडक्ट करता है तो उसको बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, ईवीएम मशीन्स बनाने के लिए या बाकी सब तैयारी करने के लिए, जो ऑफिसर्स काम करते हैं इलेक्शन के लिए उनको सैलरीज देने के लिए. सो ये बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है. सो देयर इज अ प्रोविजन मेड बाय द पार्लियामेंट या अपना गवर्नमेंट कुछ पैसा इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर करता है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए. सो देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस मीन्स हाउ मच स्पेंडिंग दैट इज डन बाय इलेक्शन कमीशन. द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ. Government officers, teachers and other employees help the election commission to execute process of election. सी पूरा अगर इंडिया में इलेक्शन कराना है तो बहुत सारे लोगों का जरूरत है, लाखों लोगों का जरूरत है. इलेक्शन कमीशन के पास खुद का इतना स्टाफ नहीं होता है, उनके पास बहुत लिमिटेड स्टाफ होता है. लेकिन इलेक्शन जब भी कंडक्ट करते हैं तो वहां पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं या अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं. दिस आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं. जब भी इलेक्शन का पीरियड होता है तभी वो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं. और इलेक्शन कमीशन कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है. जैसे सपोज महाराष्ट्र के कुछ अच्छे ऑफिसर्स है, तो अगर दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है तो महाराष्ट्र के कुछ ऑफिसर्स दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली के कुछ ऑफिसर्स महाराष्ट्र में आएंगे. सो इलेक्शन कमीशन उनको सिलेक्ट करता है. सो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा पावर होता है, वो ऑफिसर को चैलेंज कर ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है, चैलेंज नहीं करता है, ऑर्डर दे सकता है. सो ऑल द ऑफिसर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. Then we will see what are the functions of election commission. There is also a national voter day that is celebrated by election commission. ये national voter day ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं. So we are encouraging people so that they will vote. So in India only 60% people are voting. 40% people are on average only 60% people are voting in election. 40% नहीं करते. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम वोटिंग के लिए लाएंगे बाहर तो अच्छा गवर्नमेंट बनेगा. सो देयर इज अ डे, नेशनल वोटर्स डे, दैट इज सेलिब्रेटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. लेट अस सी नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. फर्स्ट फंक्शन इज प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट. आपने कभी सुना होगा कि वोटर लिस्ट होता है जिसमें अगर मैं मुंबई में रहता हूं या कोई पुणे में रहता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में आएगा. इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड कि इंडिया में 18 ईयर्स अबव लोग हैं उनको वोटिंग का राइट मिलता है. सो अगर उनका 18 ईयर्स कंप्लीट होता है तो उनको फॉर्म फिल करना पड़ता है. फॉर्म फिल करने के बाद उनका वोटर लिस्ट में नाम आता है. सो दैट वोटर लिस्ट, सपोज आई एम लिविंग इन पुणे, सो माई नेम विल कम इन पुणेज वोटर लिस्ट. सपोज आई एम लिविंग इन नागपुर, देन माई नेम विल कम इन नागपुर वोटर लिस्ट. तो ये वोटर लिस्ट बनाने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. जैसे अपने स्कूल में रजिस्टर होते हैं जिसमें सभी बच्चों का नाम होता है. सो रजिस्टर मेंटेन करने का काम होता है टीचर का या क्लास टीचर का. सेम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कीपिंग द रजिस्टर ऑफ ऑल द वोटर्स, दैट इज कॉल्ड एज वोटर लिस्ट. सो एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड 18 years of age has the right to vote. To exercise the right to vote or to use the right to vote, citizens' name must be in the voters list. It is the responsibility of Indian election commission to prepare the list of eligible voters. So अगर मेरा 18 years कंप्लीट हुआ तो मैं जाके वोट नहीं कर सकता. My name should be in the voters list. I should register for election. इलेक्शन के लिए मुझे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में आता है. वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद ही मैं वोट कर सकता हूं. So that voter list is made by Election Commission of India. It is the responsibility of Election Commission to prepare list of eligible voters, update the existing voter list and include the name of new voters. See, हमेशा वोटर लिस्ट अपडेट होते रहता है. अगर कोई नए लोगों का 18 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है तो उनका नाम ऐड होगा. सो हमें वोटर लिस्ट बार बार अपडेट करना पड़ता है. अगर किसी ने अपना लोकेशन चेंज कर दिया, अगर मेरा मुंबई के वोटर लिस्ट में नाम था, अगर मैंने अपना लोकेशन चेंज करके नासिक में चला गया, सो नासिक के वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए. सो एवरी टाइम द वोटर लिस्ट इज अपडेटेड. ऑल्सो सम पीपल आर डाइंग, सो देयर नेम हैव टू बी डिलीटेड. सो एवरी टाइम द वोटर लिस्ट इज अपडेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन. The election commission has the authority to issue identity card to the voter. See, you must have seen your parents' voter identity card. Voting card होता है, identity card होता है. That is also given by Election Commission of India. Then let us see this.
when candidates have only the condition of age eligibility while they should have the other information to election commission. See, जब भी कैंडिडेट्स या जो लोग वोटिंग के लिए फाइट कर रहे हैं, जो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनने वाले हैं, जब भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, जब भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, सिंपल टर्म में हम बोलते हैं कि जब भी इलेक्शन में खड़ा होता है, तभी कैंडिडेट को अपने फॉर्म के साथ अपने एजुकेशन का डिटेल्स, अपने प्रॉपर्टी का डिटेल्स, अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड का डिटेल्स देना पड़ता है. तो ये डिटेल्स जब भी पता चलता है लोगों को, तो लोग सिलेक्ट अच्छा कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन. Why are the candidates required to give the information to of their property to election commission? So what is the reason? Property का हमें क्यों information देना पड़ता है? See, suppose एक honest candidate है, एक non corrupt candidate है, लेकिन वो poor है, और दूसरा एक rich candidate है, लेकिन वो corrupt है. So अगर rich candidate ज़्यादा पैसा बांट रहा है और जीत गया इलेक्शन में, आफ्टर इलेक्शन में जीतने के पहले उसने बताया था कि उसका प्रॉपर्टी सपोज 100 करोड़ है, 100 करोड़ प्रॉपर्टी है. 5 ईयर्स के बाद जब भी वो इलेक्शन फाइट करेगा, उसे वापस अपना प्रॉपर्टी के बारे में बताना पड़ेगा. अगर 5 ईयर्स में उसका प्रॉपर्टी 100 करोड़ से 1000 करोड़ हो गया, सो हमें पता लगेगा कि इसका प्रॉपर्टी बढ़ रहा है. अगर हम तो हमें पता चलेगा कि ये कैंडिडेट रिच हो रहा है या ये कैंडिडेट करप्शन कर सकता है. ऐसा चांसेस नहीं है कि वो करप्शन ही करेगा, उसका प्रॉपर्टी बिजनेस के वजह से भी बढ़ सकता है, बट देयर आर मोर चांसेस दैट ही कैन डू करप्शंस, और we can see who is more rich, who is more poor. So because of this, we have to give details about our property. Next function of election commission is decide the timetable and program of election. See, election commission election कभी करना है, election का result कभी लगाना है, ये decide करता है. So ये program बनाता है कि कभी election होगा country में. So dates are decided. So that is all done by Election Commission of India. The conduct of election is entirely the responsibility of election commission. So election commission is conducting elections. The election commission decides when to conduct elections and how many stages to hold the elections in every state. See, if you take example of India, India is a big country. So एक ही country में या India जैसे country में एक ही time पे सभी जगह हम elections नहीं conduct कर सकते. So elections are conducted in stages. कुछ जगह पे एक दिन इलेक्शन होगा, कुछ दिन बाद दूसरे जगह पे इलेक्शन होगा. So it is conducted in stages. That all the thing is decided by Election Commission of India कि कौन से जगह पे कभी इलेक्शन करना है, रिजल्ट एक ही दिन काउंट होता हम काउंट करते हैं, कभी काउंट करना है. एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. थर्ड इज स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स. द टर्म स्क्रूटिनी मीन्स वी आर चेकिंग द कैंडिडेट द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स. अगर कैंडिडेट ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया है या कैंडिडेट ने फॉर्म अच्छे से फिल नहीं किया है, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है. So everything or scrutiny that is done by election commission. After the election dates are declared, every political party selects the candidates to contest election. Some candidates contest the elections independently without the support of any political party. जब भी अपने कंट्री में इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होता है, डेट डिक्लेयर होने के बाद सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को इलेक्शन में खड़ा करते हैं, इलेक्शन में टिकट देते हैं या कैंडिडेट बनाते हैं अपना. कुछ लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते, किसी की भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते. They can also fight elections. So they are independent candidates. They are not dependent on political parties. या हम मराठी में उसे अपक्ष उम्मीदवार बोलते हैं या अपक्ष उम्मीदवार. So he is not part of any political party. और निर्दलीय उम्मीदवार. He is not part of any political party. That person can also become a part of election. Can contest elections. So we have to check their application कि उन्होंने जो application दिया है, फॉर्म भरा है, वो फॉर्म ठीक है कि नहीं है. So candidates of political parties as well as independent candidates have to fill application which include information about their own self. The election commission scrutinizes or checks all the application and allows the eligible candidate to contest election. So application check करता है, application check करने के बाद अगर application correct है, तो ही उस आदमी को इलेक्शन फाइट करने का चांस मिलता है. इफ द एप्लीकेशन इज रॉन्ग, then that person's candidate or that person's form is cancelled or he cannot fight the election. Fourth is give recognition to political parties. See, हमारे यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज है. उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करना पड़ता है. कोई भी अगर नया पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, दैट पर्सन और दैट लीडर has to register that political party with election commission. See, after registration, कुछ political parties जैसे बीजेपी और we are having Congress, these are very big parties. पूरे इंडिया में उनका सपोर्ट है. So these are national level parties.
इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और nationalist Congress party is also a national party, but there are some political parties like DMK. These are state parties, ये state level पे है, regional level पे है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमको कोई स्टेट पार्टी है या कोई नेशनल पार्टी है? इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। विल सी दिस इन थर्ड चैप्टर। देर आर सम क्राइटेरिया। इफ सम पॉलिटिकल पार्टीज आर fulfilling that criteria, then only that political parties are recognized as state parties or national parties. So that thing, recognition is given by Election Commission of India. We have the multi-party system in our country. Multi-party system means we are having many political parties. New parties continue to form. Split in the parties result in the formation of new parties. So if you take example of Congress, so Congress party से बहुत सारे political parties बने हैं. So NCP और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार का जो पार्टी है, सो वो पार्टी भी शरद पवार कांग्रेस में थे पहले, उसके बाद वो स्प्लिट हो गए कांग्रेस से। सो कांग्रेस में से नया पॉलिटिकल पार्टी बन गया। सो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में स्प्लिट होता है। इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सो लीडर ऑफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ शिवसेना, बट ही फॉर्म्ड अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें से स्प्लिट हो गए। सो देर आर स्प्लिट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज और देर आर न्यू पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर फॉर्म्ड। All political parties are required to be recognized by Election Commission of India. Election Commission of India के पास उन्होंने रजिस्टर करना पड़ता है। Election Commission also has the right to de-recognize any political party. अगर कोई political party अच्छा काम नहीं कर रहा है या criminal background का है, leaders अच्छा काम नहीं कर रहे, they are doing bad things, then they can cancel that registration और de-recognize कर सकते हैं। The Election Commission has also allows election symbol to political party. You must be aware of symbols. कांग्रेस का जो सिंबल है हैंड, हाथ, या बीजेपी का लोटस, शिवसेना का जो बो एंड एरो, दिस आर द सिंबल्स दैट आर अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये सिंबल्स अलॉट करता है। फिफ्थ इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस के बीच में कुछ फ्रॉड हो रहा है या कुछ गलत चीज हो रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कुछ पैसे बांटने का कोशिश किया, सो दिस आर बैड थिंग्स दैट आर डन इन इलेक्शंस. So to resolve the disputes between the elections, it's done by Election Commission. The Election Commission has the responsibility to responsibility of resolving any disputes that may arise during elections or that may arise regarding elections. Accordingly, to declare any candidate as disqualified or conduct re-election is the particular constituency is the responsibility of Election Commission. अगर किसी कैंडिडेट ने पैसे बांटने का कोशिश किया या बैड प्रैक्टिसेस करके जीतने का कोशिश किया, तो उस कैंडिडेट का हम नॉमिनेशन कैंसिल कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. दैट इज डन बाय इलेक्शन कमीशन. ऑल्सो सपोज इन सम प्लेस देयर वेर बैड प्रैक्टिसेस दैट वेर डन और मैल प्रैक्टिसेस वेर डन, किसी ने फोर्स यूज करके या गुंडे यूज करके हमने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने अगर कैप्चर कर दिया और गलती से गलत वोटिंग कर दिया और जीत गए, अगर ये प्रूफ हो गया कि ये ऐसे हुआ है, देन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस जगह का इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा और वहां री इलेक्शन होगा. ये सब चीज देखने का काम करता है इलेक्शन कमीशन. सो इलेक्शन कमीशन इज हैंडलिंग दिस इश्यूज. लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन दिस बॉक्सेस. Some constituencies are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribes. See, you must be knowing that scheduled caste and scheduled tribes are having reservation. लोक सभा में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीट्स आर रिजर्व. फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स देयर आर 47 सीट्स आर रिजर्व. उस 84 सीट्स में सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ही इलेक्शन के लिए फाइट करेंगे. सभी को वोट करना पड़ेगा, लेकिन वोट सिर्फ हम शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी को कर सकते हैं. इन 47 सीट्स सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ही वोट कर सकते हैं. शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं. वोटिंग सब करेंगे. सो दिस सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज एन इलेक्शन सिंबल. तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल है. You must be knowing about different political parties and their symbols. At the time of voting, counting of votes, the official representatives of political parties may remain present. See, जब भी वोटिंग होता है या वोटिंग का काउंट होता है, तो वहां अगर किसी ने घपला कर दिया या वहां किसी ने घोटाला कर दिया, तो कोई गलत कैंडिडेट जीत सकता है. इसलिए उसके ऊपर नजर रखने के लिए, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं देखने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं वहां. अगर मैं कैंडिडेट हूं और मैं इलेक्शन फाइट कर रहा हूं, सो मुझे पता होना चाहिए कि इलेक्शन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इलेक्शन फ्री एंड फेयर है कि नहीं.
सो मैं अपनी तरफ से कुछ लोगों को भेजूंगा देखने के लिए, जब भी वोटिंग होता है उस टाइम पे भी जा सकते हैं, जब भी वोट काउंट होता है तो भी जा सकते हैं। दे कैन चेक वेदर द वोटिंग काउंटिंग और वोटिंग इज डन प्रॉपरली और नॉट। सो दिस इज ensuring that the elections are free and fair. Recognized parties have equal opportunity to present their side before media such as television, radio. So they can do campaigning via radio, television. They can tell people that we will do good thing to you, good thing for you. So you should vote for us. जैसे 2014 में गवर्नमेंट ने बताया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने बताया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सो दिस इज अ टैगलाइन। ये टैगलाइन यूज करके उन्होंने प्रचार करने का कोशिश किया या कैंपेनिंग करने का कोशिश किया, एंड दैट वाज सक्सेसफुल। या अब की बार मोदी सरकार, दैट वाज अ सक्सेसफुल टैगलाइन। सो बिकॉज ऑफ दिस दे गॉट इलेक्टेड। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट टैगलाइन यूज करते हैं, जैसे कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, दिस इज अ टैगलाइन ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस यूज करके जीतने का कोशिश करता है। सो दिस इज डन बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। Let us see what they are saying. See, government has to observe the code of conduct declared by the election commission. Code of conduct क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं जो रूल्स पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमने पहले भी देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको अपने प्रॉपर्टी के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ता है। सो दिस आर कोड ऑफ कंडक्ट, दिस आर सम रूल्स दैट आर गिवन बाय इलेक्शन कमीशन एंड एवरीबडी हैज टू फॉलो दैट रूल्स। जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है, इलेक्शन डिक्लेयर होता है उसके बाद हम नया कुछ इनॉग्रेशन नहीं कर सकते। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद नया इनॉग्रेशन नहीं हो सकता है। सो दिस आर सम कोड ऑफ कंडक्ट्स दैट शुड बी फॉलोड बाय कैंडिडेट्स। देन हु इज सुपीरियर, द गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन? आंसर फॉर दिस इज व्हेन इलेक्शंस आर देयर। इलेक्शन जब भी डिक्लेयर होता है और जब भी वोटिंग काउंट होता है, उस पीरियड के बीच में इलेक्शन कमीशन ज़्यादा पावरफुल होता है। हमेशा गवर्नमेंट पावरफुल है, लेकिन या गवर्नमेंट पावरफुल है लेकिन इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो अलग है। लेकिन जब भी इलेक्शंस का टाइम होता है तभी इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट से भी पावरफुल होता है। वो प्राइम मिनिस्टर को भी ऑर्डर दे सकता है, चीफ मिनिस्टर को भी ऑर्डर दे सकता है, या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का भी ट्रांसफर कर सकता है, पुलिस कमिश्नर का या म्युनिसिपल कमिश्नर का भी ट्रांसफर कर सकता है। सो दिस इज द पावर दैट इज गिवन टू इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन इज मोर पावरफुल ड्यूरिंग इलेक्शंस. See, let us see which two conditions among the following are violation of code of conduct. See, candidate distributing items of household use. So ये अपना जीतने के लिए टीवी बेच रहे या फिर यूटेंसिल्स बेच रहे, दे रहे फ्री में. So this is wrong. This should not be done. ये क्या होगा कि जो रिच कैंडिडेट है ऐसा सब डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उसका जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा. तो दिस इज रॉन्ग. सो ऐसा इलेक्शन कमीशन का रूल है कि आप किसी को पैसा देके या फिर कुछ गुड्स देके या फिर कुछ गिफ्ट देके वोट नहीं मांग सकते हो, या आपके रिलीजन के बारे में बोल के या भड़का के वोट नहीं मांग सकते हो. इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर. द नेक्स्ट इज प्रोमिसेस मेड टू रिजॉल्व द वाटर प्रॉब्लम्स इफ इलेक्टेड. सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे एरिया में जो पानी नहीं आ रहा है वहाँ इलेक्शन में जीतने के बाद मैं पानी लेके आ जाऊंगा, दिस इज करेक्ट, वी कैन से दैट, बट वी कैनॉट गिव मनी टू द पीपल सो दैट दे कैन वोट फॉर अस. टू गो फ्रॉम डोर टू मीट वोटर्स एंड रिक्वेस्ट देम टू वोट. सो हम जा सकते हैं घर घर तक और वोट के लिए मांग सकते हैं, दिस इज ओके. देन अपील ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन टू गेट सपोर्ट. सो कास्ट और रिलीजन के ऊपर मैं सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा हूँ लोगों का, दैट इज रॉन्ग, दैट शुड नॉट बी डन. सो इन दिस फर्स्ट एंड फोर्थ आर रॉन्ग थिंग्स. ये कोड ऑफ कंडक्ट के अलग है, या वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है. ये कोड ऑफ कंडक्ट हम ब्रेक कर रहे हैं. सी, दिस वॉज द फर्स्ट पर्सन, श्याम सरन नेगी. ही वॉज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. ही वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया. 1951 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, 1951, 25 अक्टूबर 1951, he was the first person, Shyam Saran Negi, who gave the first vote. He was the first voter of independent India. Process of election. First is establishment of constituencies. Constituencies क्या होते हैं, जैसे मराठी मध्ये आपण त्याला मतदार संघ बोलतो. पूरा कंट्री का हम बात करेंगे, पूरा इंडिया का बात करेंगे, तो पूरे इंडिया में से लोकसभा में 543 सीट्स होते हैं, 543 कैंडिडेट्स आते हैं जो इलेक्शन से आते हैं. पूरे मिला के लोकसभा में 545 जगह सीट्स है, 545 कैंडिडेट्स है. उसमें से 543 के लिए इलेक्शन होता है. अगर मुझे पूरे इंडिया में से 543 लोगों का इलेक्शन कराना है, इलेक्शन में जिताना है 500, या इलेक्शन से चूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंडिया को 543 हिस्सों में डिवाइड करूंगा.
दैट डिवीजन दैट इज डन बाय इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन डिवाइड करता है. ये डिवीजन होता है पॉपुलेशन के हिसाब से. अगर कुछ जगह पे कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां कॉन्स्टिट्यूंसी या वहां जो डिवीजन है वो छोटा होगा. जैसे लद्दाख जैसा एरिया है या कश्मीर का कुछ पार्ट है, लद्दाख का एरिया है, जहां बहुत कम लोग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं लोग, मतलब ज्यादा एरिया में कम लोग रहते हैं. सो बड़ा एरिया होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ा होगा. सो लद्दाख जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया. और चांदनी चौक या मुंबई के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज है, दिस आर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूंसीज, क्योंकि वहां कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं. ये जो एरिया है जहां से एक कैंडिडेट चूज होके आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूंसी. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ पुणे, सो पुणे इज अ कॉन्स्टिट्यूंसी. पुणे को हमने अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में से कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस. वो लोग अपने अपने कैंडिडेट को वहां खड़ा करेंगे इलेक्शंस में. जो कैंडिडेट को ज्यादा सीट मिलेगा, दैट विल बी द विनर. दैट कैंडिडेट विल बी द विनर. और वो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेगा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा. वैसे पूरे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है. कॉन्स्टिट्यूंसीज का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि इट इज अ डिवीजन दैट इज डन और वन रीजन वेयर वन पर्सन विल बी रिप्रेजेंटेटिंग. फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, then finalizing the voter list. So voter list we have seen in first part, what is the voter list. So voter list finalize करते हैं. Then nomination of candidates and scrutiny of their nomination form, this also we have seen in first part. So we are nominating the candidates or we are checking the nomination of candidate. Nomination means form check करते हैं उनके, और वहां उसका scrutiny होता है. We are checking whether the form is correctly filled or not. So if the form is correctly filled, then that is accepted, otherwise that is rejected. Then election campaign, उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर होता है. डिक्लेयर होने के बाद, इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होने के बाद गवर्नमेंट को या फिर पॉलिटिकल लीडर्स को 15-20 डेज मिलता है. उस 15-20 डेज में लोग प्रचार करते हैं. प्रचार मतलब कैंपिंग, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के पास जाते हैं और अपने पॉलिसीज के बारे में बताते हैं. और वो पॉलिसीज अगर लोगों को पसंद आया तो लोग उनके लिए वोट करते हैं. सो इलेक्शन, दैट इज इलेक्शन कैंपिंग. देन एक्चुअल वोटिंग, सो वोटिंग डेट में जाके लोग वोट करते हैं, दैट इज एक्चुअल वोटिंग. Then after the voting day there is counting of voting. So voting का result हम count करते हैं कितना किसको वोट मिला. So that is counting of voting. After that results of election. So after the votes are count, जो लोगों को ज्यादा वोट मिला, that person is declared as winner. So we are declaring the results of election. Then resolution of disputes regarding the election. So if suppose in some constituencies, if you take example of one constituency of Mumbai. So मुंबई के एक constituency में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत गया, लेकिन दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का बोलना है कि ये लोगों ने फ्रॉड किया है, दैट इज नॉट गुड इलेक्शन, इलेक्शंस वर नॉट कंडक्टेड प्रॉपरली. सो इलेक्शन कमीशन चेक करेगा, वेरीफाई करेगा अगर ये बात ठीक है कि गलत है, ऐसा जो बोला है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने, वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग. इफ द इलेक्शन कमीशन इज फाइंडिंग दैट द इलेक्शंस वर नॉट कंडक्टेड प्रॉपरली, तो उस एरिया का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा और वहां री इलेक्शन होगा. अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इलेक्शन ठीक से हुआ है, देन दैट इलेक्शंस आर नॉट कैंसल्ड. सो रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन कम इन एग्जाम. सो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, दिस पॉइंट्स यू हैव टू राइट और यू हैव टू जस्ट गिव एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग each of the points. See, then रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे मैंने बताया कि पूरे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा के, जिसके लिए इलेक्शन होता है. पूरे मिला के 545 है, लेकिन जो दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से. द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 543. हाउ आर दिस मेंबर्स इलेक्टेड? सो आई हैव टोल्ड यू, पूरे इंडिया को हम 543 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और हर हिस्से में से एक कैंडिडेट जीतेगा. सो ही विल बिकम द मेंबर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. How are the elections elected? How are the members elected? We have seen this. I have explained this. Every member represents one constituency. It means that there are 543 constituencies of Lok Sabha. Creating constituencies is the responsibility of Election Commission or Delimitation Commission. ये delimitation क्या करता है कि delimit करता है, divide करता है constituencies को. ये delimitation commission भी election commission का part होता है, उसका एक organization है. The delimitation commission does not succumb to any pressure while restructuring constituencies. ये किसी का प्रेशर का कदर नहीं करता है. सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल कर रहा है आज, और उस पॉलिटिकल पार्टी को एक हिस्से में बहुत सारे सपोर्टर्स है,
तो डीलिमिटेशन कमीशन को प्रेशराइज कर सकता है कि ये हिस्से में मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी बना के दो, तो मेरा जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा. बट इलेक्शन कमीशन और डीलिमिटेशन कमीशन इज नॉट लिसनिंग टू एनीबडी. इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव टोल्ड यू, इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है. सो इट इज नॉट लिसनिंग टू गवर्नमेंट, इट इज वर्किंग एज पर इट्स ओन विश. Then code of conduct. What is code of conduct? To ensure free and fair elections in India, the Election Commission has adopted several measures. The code of conduct is one such measure adopted by Election Commission. Code of conduct means there are some rules, there are some laws that are formulated by Election Commission. In the last few decades, Election Commission has used this power to control malpractices or bad practices during election, जैसे corruption, पैसे बांटना, कुछ चीज बांटना, that is malpractices. The code of conduct explains rules that are to be followed by the government. So government को कुछ rules follow करना पड़ता है. I have told you in the first part also कि government नया कुछ घोषणा नहीं कर सकता है या नया उद्घाटन नहीं कर सकता है, इनॉग्रेशन नहीं कर सकता है. जब भी इलेक्शन डिक्लेयर होता है उसके बाद नया इनॉग्रेशन नहीं कर सकता है या गवर्नमेंट का नया स्कीम्स नहीं ला सकता है. दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट. देन पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो हैव टू फॉलो सम कोड ऑफ कंडक्ट. पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन के ऊपर या कास्ट के ऊपर वोट नहीं मांग सकते. एंड वोटर्स बिफोर इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस. वोटर्स को भी कुछ चीज बात माननी पड़ती है. जब भी हम वोटिंग करने जाते हैं तो वहाँ टाइमिंग दिया होता है कि 7 AM से 5 PM के बीच में इलेक्शन होगा या वोटिंग होगा. सो उस दिन हमें उसी टाइम के इसमें जाना पड़ता है. अगर उसके बाद गए तो हमें वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. सो वी हैव टू फॉलो सम कोड ऑफ कंडक्ट. देन बिफोर इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग इलेक्शन देयर आर सम कोड ऑफ कंडक्ट दैट शुड बी फॉलोड. Every government cannot violate these rules. Due to the strict observance of code of conduct in the last few elections, the common voters have become confident. So ये strict rules के वजह से voters बहुत confident है कि elections वहाँ अपने आप free and fair होता है. Then second is challenges in conducting free and fair elections. So what are the challenges that we are facing in conducting free and fair elections? Free election means everybody is having the freedom to choose anybody. किसी को भी हम चूज कर सकते हैं, कोई हमें प्रेशराइज नहीं करेगा. दैट इज फ्री. एंड फेयर इलेक्शंस मींस देयर इज नो करप्शन, देयर इज नो मैल प्रैक्टिस, एवरीबडी इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू विन. दैट इज फेयर इलेक्शन. इफ यू टेक इनटू अकाउंट ऑफ साइज ऑफ आवर कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स, सी इंडिया में जितने वोटर्स है उतने वर्ल्ड में कहीं नहीं है. इंडिया में सबसे ज्यादा वोटर्स है वर्ल्ड में. कंडक्टिंग इलेक्शंस बिकम्स अ ट्रूली चैलेंजिंग टास्क. The Election Commission has to work in accordance with the law which dealing with these challenges. Some of the challenges are mentioned below. See, this is also an important question. This can come in exam. What are the challenges that are faced by Election Commission? ये भी challenges आ सकता है. First point is misuse of money takes place to great extent during elections. So आपको पता होगा कि पैसे बांटते हैं वोटिंग कराने के लिए, जीतने के लिए. So misuse of money. The Election Commission has to take several measures to stop such misuse. So Election Commission पुलिस का यूज करके ये गलत चीजें स्टॉप करने का कोशिश करता है. Then many political parties give election tickets to candidates with criminal background. So tickets मिलना मतलब क्या, मुझे उम्मीदवारी मिलना या मैं कैंडिडेट बनूंगा. अगर बीजेपी ने किसी को अपना कैंडिडेट बना दिया मतलब बीजेपी ने उसको टिकट दे दिया. कांग्रेस ने किसी को अपना कैंडिडेट बना दिया मतलब कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया. सो दे आर यूजिंग क्रिमिनल्स, दे आर गिविंग टिकट्स टू क्रिमिनल्स. तो ये स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको हम इलेक्शन फाइट करने नहीं देते. अगर सीरियस क्राइम है उसके ऊपर तो दैट पर्सन इज नॉट गिवन चांस टू फाइट इलेक्शन. द रिजल्ट इज ओनली इन criminalization of politics, but the election commission also faces problems in ensuring that elections are conducted in free environment. So elections should also be in free environment. Everybody should have freedom to choose their representatives. Another major challenge is violence during elections. जो riots होते हैं, झगड़े होते हैं इलेक्शन के टाइम में. रिसेंटली आपने देखा होगा कि अहमदनगर में जब इलेक्शन हो रहा था तो कुछ लोगों को मर्डर कर दिया था. सो दिस इज रॉन्ग. द एक्सटेंट ऑफ वायलेंस हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इलेक्शंस. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड हेल्प इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल द वायलेंस. सो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज शुड पीसफुली फाइट इलेक्शंस. टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स. सो अपने पोजीशन को बरकरार रखने के लिए, अपने पोजीशन रखने के लिए अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को हम टिकट्स देते हैं. तो लीडर के बाद उसका बेटा लीडर बनेगा, दूसरे को चांस नहीं मिलता है. दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय इलेक्शंस.
द प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक मोनोपोली हो जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी में जो फैमिली बोलता है वही होगा। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में जो फैमिली चलाते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, ये उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया है। See, let us see what were the problems that were faced by India during first election. See, at the time of first election, preparing the voter list was a challenging task. As many people were illiterate, special procedures of voting was used during elections. So बहुत सारे लोग illiterate थे, उनको पढ़ने भी नहीं आता था, कैंडिडेट का नाम भी पढ़ने नहीं आता था, इसलिए हमने सिम्बॉल्स लाया कि सिम्बॉल्स देख के वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है। सो वी हैव इंट्रोड्यूस सिम्बॉल्स। As many people were illiterate, special procedures of voting were used during elections. जैसे पहले आपने देखा होगा कि अपने यहाँ ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम बटन दबा के वोट दे सकते हैं। बट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर नॉट हैविंग दैट मशीन्स। सो बॉक्स होते थे, बैलेट बॉक्स होते थे, एक बॉक्स के ऊपर उस कैंडिडेट का नाम होता था या उसका सिंबल होता था और एक चिट मिलता था या एक स्लिप मिलता था। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का हमें कैंडिडेट पसंद है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के बॉक्स में या उस कैंडिडेट के बॉक्स में हम लोग स्लिप डालते थे। तो स्लिप का काउंटिंग होता था, जिस पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को ज्यादा स्लिप मिला, ज्यादा वोट मिला, सो वो जीत जाता था। सो अ स्पेशल प्रोसीजर ऑफ वोटिंग वाज यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्शन। 20 lakh steel boxes were made for voting purpose. Election symbols were stuck on the boxes. The voters were given the blank ballot paper which have to be supposed to be dropped in the box having election symbol and party they want to vote for. So ये blank paper हमें उस बॉक्स में डालना था। तो अगर मेरा वोट उस पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को है तो मैं उसके बॉक्स में जाके वो चिट डालूंगा। This system ensured that even the illiterate people could vote. So because of this, illiterate people could vote. Now let us see what election reforms we should do, what electoral reforms we should take in the society. Elections is a continuous process. The future of democracy depends on election. Electoral process becomes reliable if elections process get improved. Some reforms are suggested below. So ये process है, continuous process है। अगर ये प्रोसेस को हम इंप्रूव करते जाएंगे तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे और सभी लोगों को चांस मिलेगा फाइट करने का। लेट अस सी व्हाट आर द रिफॉर्म्स। फर्स्ट इज टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% कैंडिडेचर टू वुमेन। सो 50% सीट्स वुमेन को देना चाहिए। सी इन महाराष्ट्र इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव सीन 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी। सो पंचायत और म्यूनसिपालिटी में वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व है महाराष्ट्र में 50% सीट्स है, पूरे इंडिया में 33% सीट्स है। सो बिकॉज ऑफ दिस वुमेन आर गेटिंग चांस टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो उसके वजह से वुमेन को राइट मिला वोटिंग का, वोट लीडर्स बनने का। बट इन केस ऑफ लोकसभा इन विधानसभा देयर इज नो सच रिजर्वेशन। लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तरफ से, ऐसा लॉ नहीं है फिर भी अपनी तरफ से कुछ लोगों को वुमेन को वोटिंग राइट्स देना चाहिए। सो दिस विल एंश्योर दैट वुमेन विल ऑल्सो बिकम रिप्रेजेंटेटिव्स, दे विल ऑल्सो बिकम लीडर्स। सेकंड इज political parties should not give candidature to candidates having criminal background. So criminal background के जो कैंडिडेट है उन्हें हमें वोट कैंडिडेचर नहीं देना चाहिए। कैंडिडेचर मीन्स टिकट नहीं देना चाहिए या नॉमिनेशन नहीं देना चाहिए। The government should take care of election expenses to ensure that parties will not make misuse of money and mismanagement of money during elections can be stopped. See, political parties इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है कि कुछ लोकसभा इलेक्शन के लिए सिर्फ 25 लाख रुपीस आप एक कैंडिडेट खर्चा कर सकता है। तो ये लिमिट है कि इतना ही पैसा खर्चा कर सकता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है कि ये गलत तरीके से ब्लैक मनी यूज़ करके हम वोटर्स को पैसा बांटते हैं। तो ये सब गलत है। सो टू स्टॉप दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव मनी शुड बी गिवन बाय गवर्नमेंट। सो इलेक्शन फाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा देना चाहिए और बाकी सब चीजों के लिए पैसा बंद कर देना चाहिए। so, जितना गवर्नमेंट पैसा देगा उतना ही पैसा यूज होगा। सो दैट शुड बी डन। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट फंडेड इलेक्शन और इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी गिवन बाय गवर्नमेंट। सो बिकॉज ऑफ दिस मिसयूज ऑफ द मनी विल बी स्टॉप। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट एक लॉ है अपना इंडिया में, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट शुड बी अमेंडेड और शुड बी चेंज so that candidate have criminal background would not be able to participate election. Sorry. So candidates from criminal background should not have the chance to fight election. अगर क्रिमिनल लोग लीडर्स बन जाएंगे तो ये वापस वहां जाके भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे, करप्शन करेंगे, कंट्री का पूरा लॉ एंड ऑर्डर
लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा. So to stop this, we have to change Representation of People's Act and we have to ensure that the candidates with criminal background are not getting elected. See, this is the photograph of ballot box. ये जो बॉक्स है जिसमें हमें पहला वोट चिट्स डालना पड़ता था, अभी हम ईवीएम मशीन में वोटिंग करते हैं. तो ईवीएम मशीन में बटन दबाने के बाद उसमें डेटा फीड होता है कि कितना वोट बीजेपी को मिला या कितना वोट कांग्रेस को मिला, कितना वोट शिवसेना को मिला. आफ्टर ड्यूरिंग वोटिंग डे वी कैन काउंट दैट नंबर्स. उसमें हम काउंट कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना वोट मिला. सी, फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन 1951-52. दिस वाज बिगिनिंग ऑफ शेपिंग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इन इनिशियल पीरियड बैलेट बॉक्स वेर यूज, ये बैलेट बॉक्स है, फॉर दिस पर्पज ऑफ वोटिंग. द यूज ऑफ ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन started from 1990, decades of 1990. Many things could be achieved because of voting machine. If the voters do not want to vote for the candidate, they can choose none of the above option. अगर हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं है, कोई भी आदमी पसंद नहीं है, so there is a button, लास्ट में एक बटन होता है नोटा और none of the above. We can press that button कि हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है. This option can be given only because of voting machine. This has become easily for disabled people or divyang, so people who cannot walk or who cannot see or who cannot use that ballot box. So वो देख नहीं सकते कि कौन है या ये ballot box का सिस्टम यूज नहीं कर सकते. So electronic voting machine is ensuring that they can also vote in elections. Also there is one more advantage of this. इसमें अगर हमें पेपर यूज करना पड़ रहा था तो पेपर बहुत ज्यादा यूज होगा, करोड़ों लोग वोट करेंगे, सो पेपर ज्यादा वोट होगा, यूज होगा, सो ट्रीज कट करना पड़ेगा. सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन दिस ट्रीज आर नॉट कट. सो इट रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर पेपर एंड देयर बाय हेल्प्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. इट हैज ऑल्सो बीन पॉसिबल टू हैव अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. सो मशीन जल्दी कैलकुलेट करता है तो रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर होता है. ये जो पेपर्स होते हैं उसको हमें मैन्युअली काउंट करना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है. मशीन्स फास्ट रिजल्ट देता है. सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर प्रेफरिंग मशीन्स. लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल इलेक्शन. लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years इज कॉल्ड एज जनरल इलेक्शन. जो 5 साल के बाद जो लोकसभा का इलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज जनरल इलेक्शन. देन मिड टर्म इलेक्शन. अगर आज जो गवर्नमेंट रूल कर रहा है वो गवर्नमेंट को रूल करने के लिए इंडिया में 272 सीट्स 272 प्लस लोगों का सपोर्ट चाहिए लोकसभा में. अगर किसी भी गवर्नमेंट को 272 प्लस लोगों का सपोर्ट है लोकसभा में, लोगों का मींस कैंडिडेट का, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका, तो गवर्नमेंट काम करेगा. अगर उसमें से एक भी नंबर कम हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाएगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट गिर जाएगा, तो उसमें गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकता है. ऐसा बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट गिर जाता है, गवर्नमेंट हट जाता है, तो उसके बाद हम वापस मिड टर्म इलेक्शंस करते हैं. टर्म मतलब 5 year टर्म है, 5 years के बाद इलेक्शन होना है. अगर बीच में ही गवर्नमेंट सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट गिर गया, उसके बाद हम मिड टर्म इलेक्शन करेंगे, बीच में ही इलेक्शंस होगा. अगर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बना रहे, दैट इज कॉल्ड एज कोएलिशन गवर्नमेंट और अलायंस. कोएलिशन गवर्नमेंट में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं. अगर उसके सब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में झगड़ा हो गया, सो एक पॉलिटिकल पार्टी उस गवर्नमेंट से हट जाता है. उस हटने की वजह से 272 से कम मेंबर्स बच जाते हैं उसके गवर्नमेंट के सपोर्ट में, तो वापस गवर्नमेंट गिर जाता है. सो वी आर हैविंग मिड टर्म इलेक्शन. देन बाय इलेक्शन. सी, इफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा, विधानसभा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मींस पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इज रिजाइनिंग or he is dying or his candidature is cancelled by election commission, then there is a by election. बाई इलेक्शन मतलब सिर्फ उसी एरिया में वापस इलेक्शन होगा, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां जो एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव था उसका डेथ हो गया, उसने रिजाइन कर दिया, तो उस एरिया में वापस इलेक्शन होगा. दैट इज बाई इलेक्शन, क्योंकि उसका सीट वहां का वैकेंट हो गया. द इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर द वैकेंट सीट्स. दिस इज कॉल्ड एज बाई इलेक्शन. See, Election Commission established an expert committee on 8 October 2010. It was decided to add new facility, voter verified paper audit. See, जैसे ईवीएम मशीन में जब हम वोट करते हैं, वोट करने के बाद बटन दबाने के बाद हमें पता नहीं चलता कि वो वोट मेरा करेक्ट पर्सन को गया है कि नहीं. सो एक हम प्रिंट आउट का मशीन रखेंगे वहाँ, तो बटन दबाने के बाद जब भी वोट करके हो जाएगा तो उसमें से एक चिट निकलेगा. उस चिट में उस कैंडिडेट का नाम और सिंबल होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये वोट हमने दिया है वो करेक्ट पर्सन को मिला है कि नहीं. सो दिस इज
The machine's name is voter verified paper audit trial in EVM machine. So this is successfully carried out by election commission. All political parties support this because of the facility. Voters can verify whether the vote is cast. Cast means हमने उसको वोट दे दिया, is registered properly. The purpose of this important step is to stop malpractices in election. So in this chapter we have studied the electoral process from various angles. In the next chapter we will study about political parties in India.